Hello everyone, I am Prashant Shukla and you're watching my channel Utprayak Academy, and you're learning here concept of physics for foundation classes as well as for competitive courses. So most welcome to all of you in my channel. My dear students who belongs to Hindi medium, you can also watch my lecture well, because I always uses mixed language during my teaching. You can understand well. Basically, I'm uploading videos for CBSE board students, English medium, but I always uses, it's my strategy to use Hindi and English both language, because I know many students who belongs to Hindi medium also watching my videos. We are in India, but for English medium students I uses often English words. No issue at all. You can understand well. If you see sincerely my videos, then definitely you will get the concept which told in the particular video. And the students who watching my videos, they know well about my playlist. And today we are going to discuss a new chapter of 10th class physics. This video lecture is for 10th class, basically for 10th class, but this chapter also important for competitive students also, because these are fundamental concept of the 12th class. 10th class is the key concept, fundamental concept of the 12th class. So the syllabus of 10th class is very important for you, for each student, for foundation and for competitive both. So let's start our topic today, and this topic is current electricity, the name of chapter. I am going to start new chapter, current electricity. The students of class 10th who watching my videos continuously, they know well I finished already a chapter light, and so let's start a new chapter, current electricity. Current electricity, and as per as mentioned, you can say current electricity mentioned in 12th class, but in 10th class mentioned electric current. Electric current. This one. Current electricity or electric current, both are same. Current word uses in both cases, current electricity, electric current. In Hindi we say Vidyut Dhara. What we say? Vidyut Dhara. Current electricity in English, electric current in English, and in Hindi Vidyut Dhara. First of all, to define the particular this term, we have to learn the definition of current electricity or electric current. First of all, what will be the definition of this particular term, electric current or current electricity, Vidyut Dhara? So well, as you know well, the meaning of this word current, I hope you know. Let me tell you, current, this word defines itself also. Current means in Hindi dhara, streamline flow, streamline rate of flow. कोई चीज़ एक कतार के साथ कई चीज़ फ्लो हो रही है, कोई चीज़ फ्लो हो रही है, रेट ऑफ फ्लो. करंट ऑफ वाटर भी बोलते हैं, पानी की धारा. So current is a rate of streamline flow of anything. This is correct. And electric
This one electric. Electric means electric. Elect. Elect identify the term electron. The current of electron generates current, electric current. Current of electron. Beam of electron. Current means rate of flow. Rate of flow of electron always generates electric current. Excuse me for 1 second, please. Yes, well, I told you current, electric current or current electricity means current of electron. In Hindi, electrons की धारा means current of electron, rate of flow electron always generates electric current, that is denoted by I. I. This is denoted by I. And unit ampere. Ampere means rate of flow of electron always produces a electric current I. Yeah, we can say the current electricity or electric current is the rate of flow of electron throughout any medium, throughout any conductor. इसका पूरा क्या मतलब है, ये एक एक्सप्लेनेशन है, इसको बहुत अच्छे समझे, बहुत डेप्थ तक समझे। इलेक्ट्रॉन तक हम लोगों को जाना है। इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी चीज़ की, वहाँ तक हमें स्टडी करनी है इसको समझने के लिए। तो इसको अच्छे से समझिए। हिंदी में कह देंगे कि आवेश प्रवाह किधर, इलेक्ट्रॉन से ही आवेश बनता, आवेश प्रवाह किधर, विद्युत धारा होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है ये आप जान लीजिए। देखिए, वैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब की तो बहुत ब्रॉड स्टडी है, बट आप सभी को जनरली पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ऐसे लिखते हैं ई, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। This is the value of charge in one electron. Coulomb is the unit of charge. बेसिक थ्योरी में आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एटॉमिक थ्योरी इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन आपको पता है, मैं करंट से स्टार्ट करता हूँ, करंट से इलेक्ट्रॉन पे जाऊँगा। सपोज कीजिए कंडक्टर, अगर इसको आप सप्लाई देते हैं, उस सप्लाई को हम ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल या वोल्टेज। आप किसी भी डिवाइस को आप सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो उसको आप ईएमएफ देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम पोटेंशियल भी बोलते हैं, उसको वोल्ट भी बोलते हैं। तो ये आप सप्लाई इसमें देते हो, तो ये सप्लाई एनर्जी है। वोल्टेज क्या है? एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब किसी कंडक्टिंग मीडियम में एनर्जी जाती है, जहाँ भी एनर्जी जाती है वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। आपने एक ईंट का पत्थर पानी में मारा, पानी डिस्टर्ब हो गया। कोई भी चीज़ जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो उसके अंदर वो एनर्जी जाकर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। डिस्टर्बेंस ये होता है, मैं आपको एक बेसिक थ्योरी बताता हूँ। कोई भी कंडक्टिंग मीडियम किससे बना हुआ होता है? एटम से। एटम के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इन न्यूक्लियस प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस के बाहर KLMN सेल जो आप पढ़ चुके होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर मिलियन एटम हैं और हर एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ये एटम का एक बिहेवियर होता है, चाहे मेटल के अंदर का एटम हो चाहे कहीं का भी एटम, का बिहेवियर होता है। एटम के ऊपर अगर कहीं से बच्चों एनर्जी आती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, चाहे लाइट के फॉर्म में, चाहे हीट के फॉर्म में, उस एटम में से इलेक्ट्रॉन
बाहर निकल जाता है। एटम कुछ ऐसा होता है, एटम को हमने ऐसे जूम किया है, बीच में न्यूक्लियस है, इसके आउटर मोस्ट सेल में प्रोटॉन नहीं निकलता है। प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव 12th में इसकी ब्रॉड स्टडी है। आप इतना लो कि प्रोटॉन पॉजिटिव है, नेगेटिव, दोनों वैल्यूज नहीं होती है, एक पॉजिटिव नेचर, नेगेटिव नेचर। किसी भी एटम में, स्टेबल एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं स्टेबल कंडीशन में। इस एटम का बिहेवियर होता है, अगर बाहर से कहीं से एनर्जी इसको मिलती है तो जो आउटर मोस्ट सेल में घूम रहे इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर, तेज जंप, वो आउटसाइड, उनको एनर्जी मिलती है और हाई काइनेटिक एनर्जी से वो बाहर की तरफ जंप करते हैं। तो जब जंप कर जाते हैं तो फ्री टू मूव होते हैं। प्रोटॉन फ्री टू मूव नहीं होते, प्रोटॉन नहीं निकलते न्यूक्लियस से, क्योंकि सेंटर पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं बाहर। तो ओवरऑल ये सपोज किया आपने कंडक्टर है, यहाँ पर करंट का क्या मतलब, इसको बताने के लिए सर चीज़ बता रहा हूँ। इसमें आपने सप्लाई दिया, एक कंडक्टर किससे मिलकर बना, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, हर मिलियन एटम इसके अंदर है और मिलियन एटम मिलियन इलेक्ट्रॉन है, मिलियन टू मिलियन इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जब इसको हमने सप्लाई दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कनेक्ट किया, तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन निकले और एक डायरेक्शन में भागना शुरू हो गए। वो क्यों भागना शुरू हो गए ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुल मिलाकर इनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के अंदर करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जब एक साथ मूव किए, खूब तेज मूव कर रहे हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर वो मूवमेंट, वो मोशन एक अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। उस इफेक्ट को हम कहते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो। अगर रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे तो करंट इधर फ्लो होगा, उसके अपोजिट में एक इफेक्ट होता है, ये होता है करंट। तो मैं यहाँ बोर्ड पे कुछ चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आप समझें। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया बच्चों, इसमें एक कंडक्टर लिया, दिस इज द कंडक्टर। इसको हमने बेटा सप्लाई से कनेक्ट किया। ये टर्म क्या होता है, सप्लाई। बैटरी, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रिक का जो होता है स्विच, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव। और ये कंडक्टर है, बल्ब है कोई, ये बल्ब तभी जलेगा, ये मान लो बल्ब है, ये बल्ब तभी जलेगा जब इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। और करंट कब प्रोड्यूस होगा, जब ये बल्ब, जो कंडक्टर, कुल मिलाकर इसको मैं कंडक्टर मानता हूँ, ये कंडक्टर तब एक्टिव होगा, कंडक्टर तब काम करने की स्थिति में होगा जब इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन निकल के भागना शुरू कर देंगे। वो कब निकलेंगे, हमने सप्लाई दिया वोल्टेज के फॉर्म में। इस वोल्टेज को हम ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कंडक्टर के अंदर के जो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उन सबको एनर्जी मिली। जब हमने सप्लाई कनेक्ट किया तो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ कंडक्टर में गई, उन इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट हुई, इन इलेक्ट्रॉन्स को मिली, वो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होके बाहर आ गए। और सब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का है। मान लो इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर, फ्री टू मूव है, तो सारे एक डायरेक्शन में मूव होंगे। डायरेक्शन क्या होगी, इधर, बैटरी के सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल तरफ। क्यों, क्योंकि दे कैरी नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट होता है। ये इस ईएमएफ एनर्जी जा क्या करेगा, ये सोर्स एनर्जी ईएमएफ जाकर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकालेगा और इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा, बैटरी का पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है, सारे इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा। और ऐसे इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में रिवॉल्व हो जाता है और ये बल्ब जल जाता है। अब जो भी डिवाइस में करंट आई प्रोड्यूस हो जाती है। आई होप यू गेट इट। जब हमने सप्लाई कनेक्ट किया, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन निकले एनर्जी पाने के बाद, वो इलेक्ट्रॉन सारे एक डायरेक्शन में फ्लो हुए और ड्यू टू दैट रेट ऑफ फ्लो एक अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट जनरेट हुआ, ये करंट, उस करंट ने बल्ब जला दिया। मीन्स जहां वोल्टेज वहां करंट। अब इसमें एक टर्म और होता है, आप करंट की डिफिनेशन आपको लिखनी है तो आप सबसे पहले से करंट आपने इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर डाला, उसमें करंट, इलेक्ट्रिक करंट डिफिनेशन आप क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट एनी कंडक्टर इज नोन एज
electric current या is called electric current and denoted by I unit ampere. Okay, so यानी किसी कंडक्टर में हमने V वोल्टेज सप्लाई दिया तो वहाँ करंट I फ्लो हुआ। एक तीसरा टर्म निकल के आता है रेसिस्टेंस। करंट, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड ड्यू टू द वोल्टेज और ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वोल्टेज की वजह से करंट जनरेट हुआ और इन दोनों के बीच में एक नया टर्म और एग्जिस्ट करता है, इसके बीच रेसिस्टेंस। पहले इसको आप समझिए रेसिस्टेंस क्या होता है, फिर इसमें कैसे एग्जिस्ट करता है ये आपको मैं बता रहा हूँ। ये रेसिस्टेंस बेटा वो टर्म होता है जब ये वोल्टेज सप्लाई हमने कंडक्टर को दिया, जब हमने करंट कनेक्ट किया, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कनेक्ट किया, तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, निकले एनर्जी पाकर और सब एक डायरेक्शन मूव हुए। जब बैलों की तरह एक ही डायरेक्शन सारे मूव करेंगे तो आपस में क्या होगा, कोलिजन होगा। एंड ड्यू टू दैट कोलिजन एक रेस्ट्रिक्शंस इन मोशन होगा। जब सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड करके आगे बढ़ेंगे, इधर से निकले सब एक साथ दरभागना शुरू कर दिए तो आपस में कोलाइड हुए। कोलिजन से रेस्ट्रिक्शंस हुआ, एक रिस्ट्रक्शन, रुकावट, इलेक्ट्रॉन की फ्लो में रुकावट पैदा होगी। हिंदी में इसको हम कहते हैं प्रतिरोध, आई कहते हैं विद्युत धारा, जिसको तो हम विद्युत वाहक बल और ईएमएफ वोल्टेज ही कहते हैं। तो प्रतिरोध मतलब ही अवरोध। जाहिर सी बात है, जब सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्लो होंगे, एक साथ निकल के, तो उनके बीच कोलिजन होगा और कोलिजन जब होगा तो अच्छे से अच्छी वेलोसिटी से मूव नहीं कर पाएंगे, उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, टकराते जाएंगे, आसानी से कंफर्टली मूव नहीं कर पाएंगे। तो अवरोध हुआ ना, रेस्ट्रिक्शंस हुआ ना, अपोज टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, यही अपोज टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हर कंडक्टर का, हर एलिमेंट का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि सब में अलग अलग एक इलेक्ट्रॉनिकल टेंडेंसी होती है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें निकलेंगे कम वोल्टेज पे, उसमें ज़्यादा कोलिजन होगा, वहाँ उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल हमें केमिस्ट्री में नहीं जाना है माय डियर्स। इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्लो हुए, फ्लो ड्यू टू द फ्लो, कोलिजन एग्जिस्ट हियर, इनके बीच टक्कर हुई, ड्यू टू कोलिजन, इनके बीच अपोज टू फ्लो हुआ, फ्लो होने में अपोज हुआ, अच्छे से रेट ऑफ फ्लो नहीं हो पा रहा है, उस अपोज को हम कहते हैं रेसिस्टेंस। मीन्स रेसिस्टेंस इज द अपोज, रेसिस्टेंस द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फेसेस, या resistance is the oppose, simply it is the oppose to flow of electron throughout any conductor. Simple आप कह सकते हैं, resistance is the oppose to flow rate of flow, oppose to rate of flow of electron throughout any conductor. This is resistance, अवरोध, इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, मतलब रुकावट। अब ये रेसिस्टेंस कहने का मतलब, जब किसी कंडक्टर को हमने बच्चों वोल्टेज सप्लाई दिया तो करंट भी अपने आप जनरेट हुआ वहाँ पर रेसिस्टेंस, यानी वोल्टेज देने के बाद दो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, एक करंट जनरेट हुआ कंडक्टर में, एक रेसिस्टेंस। अब इन तीनों को इंटरलेट कौन करता है, ओम। इसको हम लोग स्टडी करेंगे, ओम्स लॉ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर नोट्स बना रहे हो, ऊपर चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक करंट डिफिनेशन मैंने बताया, यूनिट बताया, डिनोट किससे करते हैं वो है। उसके बाद ये डायग्राम आप बनाइए। इस डायग्राम में आप इस डायग्राम समझने के लिए अपनी लैंग्वेज बना दीजिए, रेट ऑफ फ्लो आप दिखा दीजिए, रेजिस्टेंस दिखा दीजिए, वोल्टेज दिखा दीजिए। फिर आप रेजिस्टेंस हेडिंग डालेंगे, उसमें इसके डिफिनेशन लिखेंगे। रेजिस्टेंस इज द अपोज टू द फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट एनी कंडक्टर। इस रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, इस रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। उसके नीचे आप लिखेंगे यूनिट, यूनिट में लिखेंगे ओम, ऐसे बना देंगे। बस अभी इतना ही लिखना है और फिर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करना है। इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एक यहाँ करके आप पहले ऊपर मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ हमारे।
ऊपर चैप्टर का नाम, फिर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया, हेडिंग डाल के डेफिनेशन, उसके बाद रेसिस्टेंस की डेफिनेशन जो मैंने बताया, उसका लिए डायग्राम आप बनाओ, इस डायग्राम को अपनी लैंग्वेज लिखो। लेट अस अज्यूम ए कंडक्टर एंड वी गिव अ सप्लाई बी वोल्टेज, देन वहाँ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ, उसका रंग बता दो। थोड़ा सा आप अपने बारे में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, और नहीं अगर लिख सकते हैं तो आपके पास बुक्स होंगे, इसमें लैंग्वेज लिखी हुई होती हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको वर्बली बता चुका हूँ। अभी इतना है, शुरुआत ही तो है। इसके बाद ओम्स लॉ हेडिंग डालते हैं। कहने का मतलब अगर कहीं वोल्टेज होता है तो वो दो चीज़ प्रोड्यूस करता है, आई एंड आर, इन तीनों को इंटरलेट कौन करता है? ओम। ये हमारे स्टूडेंट्स आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का दिया है, इलेक्ट्रिक करंट का दिया, इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है और कैसे इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है, उसकी यूनिट क्या है, रेसिस्टेंस क्या होता है, ये चीज़ मैंने आपको कंसेप्ट सिर्फ बताया है। वोल्टेज क्या होता है ये हमने आपको कंसेप्ट बताया। हाँ, वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज को पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, उसकी करेक्ट डिफिनीशन है। पहले आप ओम्स लॉ आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में ओम्स लॉ आप हेडिंग रहेगी और ओम्स लॉ अच्छे से आपको मैं ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बताऊंगा, कैसे लिखना है, उसका ग्राफ और डायग्राम। ये नोट्स प्रॉपर वैसे ही आपको जैसे आप मैं बोर्ड पे करूँगा वैसे ही नोट्स पे करना है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी ज़रूर देखो, नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है 10th पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इन तीनों का इंटररिलेशन, मतलब करंट के अंदर करंट ड्यू टू दिस और करंट के साथ ये भी जनरेट हुआ, तो इन तीनों का रिलेशन बताया गया ओम्स लॉ, उसके बाद सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ओके, सो एक बार आप ब्रीफली एक बार आप पढ़ लो चैप्टर को, ऐसे ही जनरली पढ़ लो, और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस डेफिनेशन लिख लो आप लोग। एक डायग्राम बना के इस तरह से कंडक्टर एज्यूम करके थोड़ा सा प्रोसेस बता दो कि कैसे इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। इतना आप करके रखिए, अभी स्टार्टिंग है। अगला वीडियो, अगला लेक्चर इसके बाद जो होगा वो बहुत शानदार होगा, ओम्स लॉ बहुत शानदार होगा, उस पर मैं आपको न्यूमेरिकल भी स्टेप वाइज कराऊंगा माय डियर्स। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको नहीं बता पाया, आपको मैं बहुत डेप्थ तक बताया इसके बारे में, एक चीज़ नहीं बता पाया, करंट का फॉर्मूला। करंट इलेक्ट्रिसिटी को आई से, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। क्यू अपॉन टी का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्यू यहां पर क्या है? चार्ज। जो मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं कंडक्टर में, इसमें जो मिलियन इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्लो हो रहे हैं, इन मिलियन इलेक्ट्रॉन का टोटल सम वो टोटल चार्ज क्यू है। तो Q इज इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला होता है एन। इसको मैं और अच्छे से आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसको आपको अच्छे से बता दूंगा। तो Q अपॉन टी का मतलब क्या है? Q मतलब चार्ज, Q अपॉन टी का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कोई भी चीज अगर बोला जाए P अपॉन टी, तो P रेट ऑफ चेंज इन P, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ, जहां रेट वर्ड आ जाए तो रेट का मतलब अपॉन टी हो जाता है। तो इट मीन दैट Q अपॉन टी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एंड ये चार्ज का इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसकी यूनिट एक निकल के सामने आती है, Q का यूनिट कूलम और टाइम का सेकेंड, कूलम अपॉन सेकेंड। इस पे हम लोग और एक बार फोकस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप यू गेट इट वेल, दिस वीडियो लेक्चर यू गेट इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और अच्छे से को आप इतना जितना भी है एक बेसिक इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का है, इसको आप इतना एक बार रिव्यू कर लें अपने किसी बुक से, कंसर्न बुक जो भी हो, वॉट एवर आप रखते हो। और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ बेटा आप लोग शेयर ज़रूर कर दो, लाइक भी किया कर दिया करो, व्यूअर्स हमारे बढ़ेंगे बच्चों। और मैं तो आपके साथ अपग्रेड कर लगा हुआ हूँ, अपग्रेड करता रहूँगा वीडियोस। थैंक यू बच्चों, आप लोग स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और हैप्पी रहो, खूब अच्छी पढ़ाई करो। टेक केयर बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।